Okay, so Hare Krishna, everyone. So hopefully students have joined and Prabhuji is also joined with us. So we can start today's session without delay. So, so let me introduce Prabhuji's first. Uh, so today's we have with us His Grace Sundar Natai Prabhuji, Hari Bol. So basically Prabhuji is passed out from NIT Bhopal in 2017 from electrical engineering, and after that Prabhuji also got placed in L&T company, and Prabhuji worked as a teacher also some years. Then after that Prabhuji joined full-time devotee in ISKCON Ujjain, and currently Prabhuji is serving very enthusiastically in Ujjain temple, and Prabhuji is also doing youth preaching there and NIT college, and apart from youth preaching also Prabhuji has some other services like Sankirtan go down and temple other services like guest cares, etc. And Prabhuji also inspiring so many youths and bringing so many youths in Krishna consciousness. So I and Prabhuji were living in the same ways only. Like recently I shared one video when Amog Leela Prabhu visited NIT Bhopal. Hopefully all of you have seen that video. So that is the same base when I was used to live there, and so Prabhuji and I live same base, and Prabhuji is actually a senior in all respect regarding academically and spiritually. Prabhuji is very senior to me. So when I was in first year, Prabhuji was in second year. My branch was civil and Prabhuji's branch was electrical. So, but Prabhuji is a very spiritually advanced, and Prabhuji helped me and advanced Krishna consciousness very nicely. So it is all about Krishna, Prabhuji's mercy that I am practicing Krishna consciousness uh, and following the rules and regulations. So let all of us welcome Prabhuji while I will be chanting one times Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So now I would like to request Prabhuji kindly inspire us, guide us in Krishna conscious movement. Hare Krishna. Hare Krishna. First of all, thanks to Ramanand Krishna for giving me this wonderful opportunity. Although I don't deserve to speak in front of all of you, but still, and especially all of you are very fortunate. You have many jewels with you, especially Ramanand Krishna Bro. He was the most sincere when we were in the base, and with a very short time, exponentially he done his growth in Krishna consciousness. So nice to see so many preachers coming there, especially like earlier Jagat Guru Pro and Tukaram Pro, they went and started, and now so many of you are taking the responsibilities. Yeah, very happy to see. So like although I'm not much prepared, but still I was thinking that any one of you heard about Indrajamna Swami Maharaj? No. Yes, so some of you they are like seniors, they may have heard, but many of are new. Okay. So today, like I was thinking that we'll be discussing something from one of his book. He is one of the leading Srila Prabhupada disciple, especially he preaches in the Western countries. And uh, there is one book called Drums Along the Amazons, how he spread the Sankirtan movement along the Amazon River. Have you heard about the Amazon? Amazon forest, Amazon River. Many of you heard about that. So let's see, like today I will uh, speak that pastime for some time, and later on if you have some questions you can ask, and then I will speak some another pastime. So basically I was told that how all of you are involved in the youth preaching, and just to give some inspiration to all of you, and at the same time to give inspiration to myself as well, because I am also not so much active like you. You are on the field, but basically in a youth preaching, I'm always in the background, like taking care of the students in the base,
but still let's discuss. We'll help each other. So English will be okay for everyone, or should I speak in Hindi, like whatever they are more convenient, or mixed? मिक्स्ड भी चलेगा, हिंदी भी Okay. बोल सकते हैं। हाँ, मेन पर्पज है कि चीजें समझ में आना चाहिए, अदरवाइज। और मैक्सिमम ड्यूटीज के वीडियो भी आप पे तो पता नहीं कि हाँ वो है कि नहीं है, ये भी पॉसिबल ड्यूटीज कैन टर्न ऑन देयर वीडियो, क्योंकि पर्पज है कि थोड़ा इंटरेक्शन हो, चीजें समझे। अदरवाइज रिकॉर्डेड लेक्चर्स बहुत सारे यूट्यूब पे डले हैं, हम सुन सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लेकिन कुछ इंटरेक्शन होगा तो दैट विल बी बेटर। ओके, so yes, I was telling that I will discuss from the wonderful book written by Indradyumna Swami Maharaj. He is one of the leading Srila Prabhupada disciple, and this book is all about how he spread the Sankirtan movement along the Amazon River. Like it was first time in the history, and just because he was having pure desire, और मतलब जस्ट उनकी इच्छा थी कि ऐसा करना है। तो हम देखते हैं आज जो स्टोरी, कैसे 2 महीने का टूर लेके वो गए थे अमेजन रिवर के अलोंग। तो सबसे पहले वो बुक में बताते, मैं बुक से ही रेफरेंस देते हुए आप लोग को बताऊंगा कैसे उन्होंने प्रचार किया और कितने सारे ऑब्स्टेकल्स आए। जनरली हम बाहर सुनते हैं ना, तो सुनते हैं कि अरे भक्ति मतलब क्या, खाना पीना सोना, बस यही सब कुछ भक्ति है। लेकिन बाहर देखते हैं कितने जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं कितने एडवेंचर करते हैं। भक्ति में तो ऐसे कुछ एडवेंचर रहते नहीं, बस एक सिंपल लाइफ स्टाइल ये सब करो। लेकिन रियली हम देखेंगे तो डिवोटीज कितना कुछ उसके प्रचार करने के लिए रिस्क लेते, लाइफ में कितना कुछ एडवेंचर्स करते हैं, जस्ट प्रचार आगे बढ़े। तो एक वैसा ही यहाँ पे एक रियल इंसिडेंट है, एक ऐसा कुछ नहीं कि जस्ट स्टोरी टाइप का है। तो उसमें इंद्रदेव स्वामी महाराज वो खुद लिखते हैं बुक में स्टार्टिंग में कि इस तरह से भगवान बोलते हैं कि आई एम द विक्ट्री, आई एम द एडवेंचर, आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग। तो जब महाराज ने एडवेंचर किया तब उनको रियलाइज हुआ, हाँ जो कुछ हुआ भगवान के कारण हुआ, अदरवाइज ये संभव ही नहीं था। तो महाराज बताते हैं किस तरह से पिछले कुछ सालों से अमेरिका के अलग अलग शहरों में, पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में ट्रैवल कर रहे थे, पिचिंग कर रहे थे 8 सालों से। फिर उसके बाद सोचा कि अभी नेक्स्ट जगह पे जाना है, तो उन्होंने हृदयानंद स्वामी महाराज प्रभुपाद के एक और वरिष्ठ शिष्य हैं, उनसे डिस्कस किया कि अभी कहाँ जाना चाहिए। तो महाराज ने बोला कि आपको ब्राजील में जाना चाहिए। तो ब्राजील में जाइए और वहाँ पे लगभग 38 टेम्पल्स, उस समय की बात कर रही है बुक्स, 2009 में लिखी थी उन्होंने, अभी रिसेंट में 10-15 साल पहले की बात है। तो आप ब्राजील में जाइए, वहाँ बहुत सारे टेम्पल्स है और जनरली वहाँ डिवोटीज नहीं जाते हैं। किसी ने कमेंट व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक, मैं नेम बताया था ड्रम्स अलोंग द अमेजन। ड्रम्स जो मृदंगा, ड्रम्स अलोंग द अमेजन, कैसे जो संकीर्तन मूवमेंट है अमेजन नदी के अक्रॉस पहुंचा है। तो हाँ, तो हृदयानंद स्वामी महाराज के कहने पे इंद्रदेव स्वामी महाराज थोड़ा सोचते हैं, वो पूछते हैं कि क्या लोग वहाँ इंग्लिश समझते हैं। बोले इंग्लिश तो नहीं समझते, उनकी जो लोकल लैंग्वेज है, लेकिन हाँ कुछ लोग समझ भी लेते हैं। तो धीरे धीरे उनके बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि हाँ जाना चाहिए, एक नई जगह है और ऑलरेडी वहाँ पे टेम्पल्स है, लेकिन रेयरली डिवोटीज जाते हैं। तो फिर उन्होंने प्लान किया, ब्राजील में गए और वहाँ पे अलग अलग टेम्पल्स में विजिट किया। लेकिन जब वो फ्लाइट में बैठे थे ब्राजील के लिए, तो उन्होंने एक बुकलेट देखा था ब्राजील के बारे में, जस्ट सिटी का जैसे मैप रहता है ना स्टेट का, कहाँ पे क्या क्या है। तो उस मैप में उन्होंने टॉप पे देखा था कि एक ग्रीन ग्रीन एरिया पूरा जो अमेजन का है। तो उनके मन में विचार है कि चलो यार यहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद के समय में आपने देखा होता हर जो प्रभुपाद डिसाइपल्स के अंदर एक स्पिरिट देखी कि इस कंट्री में प्रचार नहीं हुआ, पाकिस्तान चाइना, तो उस जगह वो जाते थे कुछ नया करने के लिए। तो वैसे ही महाराज के मन में थॉट आया कि नहीं, अमेजन में यहाँ पे जाना चाहिए, मतलब सोच रहे थे। फिर मेन वाइल ब्राजील के अलग अलग जितने भी जगह थी वहाँ पे उन्होंने विजिट किया, और वहाँ पे जो बीबीटी के इंचार्ज थे ईश्वर महाराज, उनसे मिले, अलग अलग जगह विजिट किया। फाइनली उनको बोला कि आप अभी मानस में जाइए, वहाँ पे मंदिर है। मानस ये अमेजन के क्लोज एक जगह है, वहाँ पे मंदिर है और डिवोटीज वहाँ लगभग पिछले 1-2 सालों से मंदिर से बाहर ही नहीं निकले, कुछ इंटरेक्शन ही नहीं है दूसरे लोगों के साथ, क्योंकि वो इतना जंगली इलाका है
डिवोटीज बाहर जाने से डरते हैं और दूसरे डिवोटीज वहां पे जा नहीं पाते हैं। तो जस्ट इतना फियरफुल सिचुएशन है। तो महाराज ने कहा ठीक है मैं वहां जाऊंगा। तो फिर वो मानस जाते हैं तो पूरा एकदम जैसे आजकल इतना एडवांसमेंट हो गया है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में तो और ज्यादा एडवांस है सिटीज। लेकिन वो जस्ट एक विलेज एरिया था, पूरा एकदम आप 30-40 साल या और ज्यादा पीछे चले जाए बैकवर्ड, तो ऐसे सिचुएशन में थी। और फिर वो मानस में गए, वहाँ पे कुछ समय बिताया और एक दिन, और वो देखे थे कि डिवोटीज किस तरह से मतलब मंदिर के अंदर ही रह रहे, पूरा उनका मतलब कहीं समय से जस्ट टेम्पल के अंदर ही टाइम जा रहा है। तो संडे जो लेक्चर होता है, संडे फेस्ट लेक्चर, तो उसमें भी जस्ट प्रसाद में क्या खिचड़ी और कुछ सेव वगैरह, क्योंकि कुछ फंड ही नहीं है, ना वो बाहर जा सकते ना डोनेशन रेज कर सकते, ऐसी हालत में रह रहे थे डिवोटीज। तो इट वाज वेरी चैलेंजिंग कि भाई इतना स्ट्रगल, बट फिर भी दे वर डिटरमाइंड कि हाँ भाई भक्ति करना है। तो महाराज ने वहाँ क्लास दिया और उसमें देखा, उन्होंने नोटिस किया कि एक माता जी कीर्तन में बहुत उत्साहपूर्वक डांस कर रही थी। और फिर बाद में नोटिस भी किया, बहुत प्रसाद ले रही थी, अप्रिशिएट भी कर रही थी। तो महाराज ने पूछा टेम्पल प्रेसिडेंट से कि वो माता जी कौन है। तो बोले कि ये तो गवर्नेंस है यहाँ की। हाँ मतलब गवर्नर की वाइफ, हाँ। तो बोला कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। बोले कि हम इनको प्रीच नहीं करते हैं। लेकिन फिर महाराज ने बोला, समाओ एक मीटिंग अरेंज की। तो जब महाराज ने डिस्कशन किया तो माता जी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड थी और उनको प्लान बताया कि हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ के जो डिवोटीज हैं बहुत समय से बाहर ही नहीं गए, तो थोड़ा सोचे कि इस्कॉन में तो पूरा एकदम इस तरह से एडवेंचर लाइफ रहती है, तो थोड़ा बाहर विजिट के लिए जाएं, स्पेशली अमेजन का क्रॉस। तो धीरे धीरे डिस्कशन में पता चला कि वो माता जी श्रील प्रभुपाद को जानती है और उन्होंने प्रभुपाद की कुछ पुस्तकें भी पढ़ रखी थी। तो महाराज को और इंस्पिरेशन मिला कि अच्छा बहुत, तो बहुत अच्छी बात है, फिर कुछ हेल्प मिल सकती है श्योरली। तो फिर उनसे डिस्कस करने लगे कि अच्छा अमेजन रिवर के अक्रॉस जाएंगे तो कैसे जाएंगे। तो बोले जिप से जा सकते हैं, 4 व्हीलर लेके। तो माता जी ने बताया कि इतना रिमोट लोकेशन है कि आप गांव के 2-3 मील पहले ही आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी और वो पूरा जंगली इलाका है, तो वहां पे आप जा ही नहीं सकते ऐसे। तो फिर बोला कि एरोप्लेन से, बोले उससे भी पॉसिबल नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि आपको जाना है तो एक अच्छी बोट करके जाना पड़ेगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। और अमेजन रिवर के भी बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस रहते हैं। जैसे जब ये समय था, उन्होंने प्लान किया था, तो वो टाइम था जब नदी का पानी बहुत ही कम रहता है। और उस समय आपको पता है अगर नदी में पानी कम रहता है तो उसमें बहुत सारे सैंड बार्स रहते हैं, नाव बीच में अटक भी सकती है। तो इस तरह से बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। लेकिन हाँ फाइनली डिसाइड हुआ कि हाँ जाना है तो अच्छी बोट करके जाना होगा। तो फिर वो बोलते हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ फैसिलिटीज नहीं है सच। तो वो बोलती है ठीक है, आई विल ट्राई टू अरेंज समथिंग। तो इस तरह से महाराज बहुत खुश होते हैं कि चलो कुछ तो मतलब चीजें आगे बढ़ रही है। जस्ट महाराज की एक प्योर डिजायर थी कि भगवान के नाम का प्रचार होना चाहिए और उसके लिए एफर्ट भी किया एट द सेम टाइम। तो हम देखते हैं किस तरह से भगवान उनकी सारी डिजायर को एक एक करके फुलफिल कर रहे हैं। पर्सनल उनका कोई ऐसा नहीं था कि चलो लाइफ में थोड़ा एडवेंचर करें, अमेजन के अक्रॉस थोड़ा घूम फिर के आए, देख के आए कैसे क्या लाइफ स्टाइल है। नहीं, जस्ट भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए इतनी रिस्क लिया। और अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, अभी तो जस्ट इनिशियल फेज। तो शुरू में उनको जब मानस पहुंचे थे, वहाँ के ड्यूटीज की हालत देखी तो उनको लगा कि संभव नहीं है अमेजन के अक्रॉस जाना। बट समाउ एक होप उनको मिली और इन माता जी के थ्रू वो प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का। तो 2 दिन बाद फिर वो जो मिसेस मंडेजा, उनका नाम है माता जी का, वो कॉल करती हैं और बोलती हैं कि आप लोग आइए, एक पर्टिकुलर डेट बताइए, उस दिन आइए और मैंने कुछ अरेंज कर लिया है आप लोगों के जाने के लिए। तो डिवोटीज बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि चलो कुछ एडवेंचर। फिर वो जाते हैं नदी के किनारे, वहाँ पे बहुत सारी लाइन से बोट्स खड़ी है। बहुत बहुत सारी बोट्स तो एकदम पुरानी और इतनी मेंटेनेंस में नहीं है प्रॉपर। फिर लास्ट में देखते हैं वो बहुत अच्छी बोट खड़ी थी। तो जो वहाँ के डिवोटीज एक मजाक में बोलते हैं, अच्छा हुआ अगर हमें ये वाली बोट मिल जाए। तो ऐसे मतलब चल ही रहा था, तो उसी बोट में से वो माता जी निकल के आती हैं और सबको बुलाती है कि आइए वेलकम, ये आप लोग की बोट है और इसके थ्रू आपको जाना होगा।
डिवोटीज बहुत एक्साइटेड होते और वो बोलते हैं कि साथ में एक ऐसे कैप्टन को भेज रहे हैं कि जिसको पिछले 20 सालों का एक्सपीरियंस है अमेजन के अक्रॉस बोटिंग करने का, और उसके साथ में और एक आर्मी फोर्स भी, मतलब 5-6 लोगों का ग्रुप भी जो आपको रिक्वायर्ड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो डिवोटीज वर वेरी हैप्पी। ठीक है भाई, बोट तो मिल गई, बोट पानी से तो चलेगा नहीं, पेट्रोल चाहिए उसके लिए। तो फिर जो महाराज धीरे धीरे अपनी डिजायर एक्सप्रेस करते कि हमारे पास तो कुछ फंड है नहीं ऐसा, तो बोलते हैं वो उसमें डिस्क्रिप्शन आता है कितना $10-100, तो मतलब $10,000 रुपए देती हैं कि आप इससे जो भी आपका एक्सपेंडिचर रहेगा पेट्रोल का, कि मेरे पति की तरफ से डोनेशन है, उसको रख लीजिए। और उससे पहले ये डिस्क्रिप्शन भी आता है कि जो नाव रहती है वो ऐसे नॉर्मल बोट की तरह नहीं है। उसमें डिस्क्रिप्शन था कि उसकी जो रेलिंग्स थी वो मेड अप ऑफ ब्रास, इंटीरियर वाज फर्निश्ड विद टीक वुड, एंड उसमें सैंडलियर्स वर मेड ऑफ क्रिस्टल। इस तरह से बहुत ही कॉस्टली बोट थी। और वो बोट जो माता जी थे, उनके जो पति गवर्नर है, वो जस्ट कोई वीआईपी गेस्ट वगैरह आते थे अमेजन में, तो उनको जस्ट विजिट के लिए यूज करते थे, नॉट फॉर पब्लिक यूजेज। उस तरह से बहुत ही मतलब हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड था उस, और वो बहुत ही किसी अमीर व्यक्ति ने डोनेट की थी। और उस बोट में डिवोटीज को जाने का मौका मिला, और उस लगभग 25-30 मीटर लंबी रहती है बोट। तो ठीक है भाई, बोट मिल गई है, पेट्रोल का भी हो गया है। तो महाराज को लगा कि भाई ठीक है, अभी तो सारे सवाल एक एक करके रख देना चाहिए, नहीं तो, क्योंकि बोट हो गई, अब खाने पीने का भी तो देखना पड़ेगा आगे क्या होगा, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं, खाली हाथ जस्ट हाँ जाना है। तो फिर जो माता जी रहती है उनको दिखाती एक पूरा स्टॉक, लगभग 1 टन खाना, मतलब ग्रेन्स वगैरह जो भी रिक्वायर्ड रहता है। बोले ये आप लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, आप इसका जैसे फुटबॉल लाइव खिचड़ी बना के या जो भी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब बहुत अच्छी बात है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का भी अरेंजमेंट हो गया। फिर एक और जगह लेके जाती है किचन में, जहाँ प्रॉपर सब कुछ एसी वगैरह लगा है, और मिल्क, पनीर, डेयरी आइटम सब कुछ, मतलब सारी फैसिलिटीज, एवरीथिंग इज देयर, कि उनको लगभग 8 वीक्स यानी 2 महीने आराम से ये चल पाए। तो ड्यूटीज बहुत खुश हो गए। फिर वो प्लान करते हैं ठीक है, अब फाइनली ये मौका मिला है प्रभुपाद की सेवा करने का और प्रचार करने का, जहाँ पे पहले कभी प्रचार हुआ ही नहीं। तो बहुत ही खुश थे। और महाराज लिखते भी हैं कि मुझे लग रहा था कि जैसे भगवान कृष्ण स्वयं आके हेल्प कर रहे हैं, और ये माता जी गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून की तरह हर चीज में मदद कर रही है। तो सारी चीजें वो मांग ली, और फाइनली डिसाइड हुआ कि अब बोट में जाना है। तो अगले दिन वो लोग आए हैं, और उन्होंने प्लान किया था कि साथ में गौर निताई, नरसिंह देव एंड गोवर्धन शिला, ये 3 डिटेल्स साथ में लेके जाएंगे। तो एग्री हो गए, तो रखा, लेकिन टर्म्स कंडीशन की भगवान है साथ में, तो बोट में नॉनवेज नहीं चलेगा। लेकिन आपको पता है जो कैप्टन्स या वो लोग रहते तो नदी के किनारे ट्रेवल करते हैं, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि इट्स नॉट पॉसिबल, वो डिनाई कर दिया कि मैं नहीं जा सकता, क्योंकि पिछले 20 सालों से मैं मछली खा रहा हूँ, स्पेशली नदी के क्रॉस। सो हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? ओके। तो डिवोटीज परेशान हो गए हैं, तो फिर महाराज ने कॉल किया माता जी को, बोला कि सॉरी, हम जा नहीं सकते हैं। बोले क्या हुआ, आपको जाना ही पड़ेगा, आपको एनी हाउ एनी वे यू हैव टू गो एंड प्लीज स्प्रेड द संकीर्तन मूवमेंट। बोले प्रॉब्लम क्या है? तो बताया कि प्रॉब्लम ये है कि जो कैप्टन है इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट के उनको नॉनवेज नहीं खाना है। तो बोले ठीक है, वेट करो, मैं आती हूँ जस्ट विद इन 20 मिनट्स। तो 20 मिनट बाद माता जी आती हैं गाड़ी लेके, और उसके साथ उनके सिक्योरिटी गार्ड वगैरह प्रॉपर आते हैं, और वो आके एक लेटर लेके आती है और उसको पढ़ती है। और उस लेटर में, हाँ मैं उसी से पढ़ता हूँ। आई मिस्टर मंडेजा, द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ अमेजन, जो उनके हस्बैंड की तरफ से लेटर था, उसमें बता रहे हैं, हियर बाई declare that the crew of the Piraiba taking the Hare Krishna devotees into the Amazon jungle for 6 weeks will be vegetarian। तो गवर्नर ने ही डिक्लेयर कर दिया कि जो क्रू जो जाएगा इनको साथ में लेके, he will be like completely vegetarian।
तो फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, गवर्नर की बात तो माननी पड़ेगी, नहीं तो सब कुछ चला जाएगा उनका। तो फाइनली मतलब वो थोड़ा उदास थे, लेकिन क्या करेंगे, ऑप्शन नहीं है। तो देन प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो सब रेडी टू गो। तो लेकिन इनिशियली ये चैलेंज था, लेकिन फिर महाराज उसी समय वहाँ बताते हैं कि वो लोग नॉनवेज के इतने एडिक्टेड थे, लेकिन एक समय बाद कुछ लोग इतना प्रसाद से प्रेम हो गया है कि कुछ लोग सुबह का जो मंगल भोग का प्रसाद उसको खाने के लिए ही जल्दी उठते थे कि एनी हाउ वो मिस नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को दिन में जो राजभोग लगता था उससे इतना अट्रैक्शन हो गया कि एनी हाउ वो मिस नहीं होना चाहिए। किसी को शाम को जो केक लगता था, तो इस तरह से सब कोई प्रसाद से अट्रैक्टेड हो गया। एट द एंड मतलब एक तरह से डिवोटी बन गए हर कोई, इतना प्रसाद से अट्रैक्शन हो गया। तो फाइनली जो एडवेंचर अभी स्टार्ट होता है, तो उसमें सबसे पहले महाराज वही बताते किस तरह से कि फर्स्ट टाइम ये अमेजन के अक्रॉस जा रहे हैं, और स्पेशली उनकी जस्ट डिजायर थी, और इस डिजायर को पूरा करने के लिए प्रभुपाद ने, भगवान ने सारे अरेंजमेंट किए, जस्ट कि हाँ संकीर्तन पार्टी अमेजन जंगल के अक्रॉस जाएं और वहाँ पे प्रचार करें। तो वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे एक्चुअली दो रिवर्स, एक अमेजन है, एक नेग्रो रिवर है। तो दोनों रिवर्स एक पॉइंट पे मिलते हैं और उसके बाद दोनों सेपरेट हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा मायापुर जाते हैं तो वहाँ पे दो अलग अलग रिवर्स कलर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक का थोड़ा ज्यादा डार्क है और जो गंगा नदी है उसका कलर थोड़ा लाइट रहता है, तो सेपरेट दिखता है। तो सेम वहाँ पे भी बहुत मीलों तक वो इस तरह से सेपरेट कलर में चल रही है, तो कितना वो है। फिर बाद में अमेजन रिवर ऑफ कोर्स मेन नदी है, तो वो डोमिनेट करती है वहाँ पे। तो सबसे पहला इंसिडेंट होता है सैंड बार का, जो मैंने बताया था। क्योंकि जब डिवोटीज जा रहे थे, ये समय था बारिश के काफी बाद का, बारिश ऑलरेडी हो चुकी थी, अभी नेक्स्ट बारिश आने में समय था। तो नदी का जो पानी का लेवल काफी कम हो जाता है, और ऐसी सिचुएशन में आपको क्या, बोट को प्रॉपर चलने के प्रॉपर पानी होना चाहिए, अदरवाइज वो कभी भी कहीं पे भी फंस जाएगी। तो स्टार्टिंग में ही ऐसा हुआ। तो जैसे ही बोट जा रहे थे तो एकदम बहुत ही शार्प टर्न लिया, तो डिवोटीज एकदम इधर से उधर हो गए। फिर बाद में पता चला कि क्यों टर्न लिया, कि क्योंकि आगे सैंड बार था। और एक्चुअली जो बोटमैन उसको बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, अदरवाइज वो कभी भी कहीं पे फंस सकते हैं। और बहुत बार तो ये होता है कि नदी अभी इस डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर लोकेशन यहाँ से चल रही है, और कुछ सालों बाद नदी की जो चलने की जो जगह है वो भी चेंज हो जाती है, क्योंकि उसके अक्रॉस जो पेड़ वगैरह रहते हैं वो अपने नदी के बहाव में कटते रहते हैं, और वो पूरा बालू रहता है वहाँ पे। नदी की लोकेशन चेंज हो जाती है, और उसमें जो अलग अलग स्ट्रीम्स रहती हैं और सैंड बार वगैरह। और एक बार आपकी नाव फंस गई तो आपको बस 5-6 महीने तक उसी में वहीं खड़े रहना पड़ेगा, जब तक पानी बढ़ेगा नहीं और पानी का प्रेशर नहीं आएगा तब तक वहीं पे रहना है। बट इस केस में तो ये नदी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, तो फिर भी थोड़ा अच्छा था कि उल्टे डायरेक्शन से फोर्स लगेगा तो बोट निकल भी जाएगी। तो सबसे पहले उनके सामने चैलेंज आता है फिरानाज का। फिरानाज का नाम किसी ने सुना है? एक यस, बताएंगे क्या है फिरानाज? लोहित। हाँ प्रभु, एक यस। मिनट। हाँ। पिरानास एक मतलब मीट ईटिंग फिश है जो बहुत डेंजरस होते हैं, और वो हमेशा ग्रुप में ट्रैवल करते हैं, और वो यस। लोग हंट करते हैं, मतलब हाँ। एनिमल्स को मीट करने के लिए। हाँ, वो एक्चुअली साइज में बहुत छोटी रहती है, लेकिन वो हाँ ग्रुप में चलती है। और कभी भी कुछ दिख गया तो एकदम से अटैक करती है, और विद इन मोमेंट्स उसको पूरा खा लेगी, हड्डियां ही बचेगी। तो उन्होंने अपने सामने देखा भी। वो लोग जा रहे थे तो एक छोटी सी ऐसी स्ट्रीम वगैरह थी, वहां से एक जंगली सुअर वहां पे उन्होंने देखा पानी पी रहा है। तुरंत जो फिरानाज थे उन्होंने अटैक किया, और जैसे बोट उसके सामने से जा रही थी, इतनी देर में उन्होंने अपने आंखों के सामने देखा कि वो बस खत्म, पूरा अंदर और पानी के अंदर गया, बस रेड रेड पानी हो गया पूरा। विद इन मोमेंट्स उसको फिनिश कर दिया, इतना फास्ट हो रहती है। तो जो कैप्टन था उसने वार्निंग दे दी थी कि अगर आप बैठे हैं तो रेलिंग से उस तरह हाथ अंदर नहीं डालना है, तो अटैक करेंगे तो पता नहीं चलेगा, आप हाथ अंगुली सब गायब हो जाएगा। तो पहले एक तो ये डेंजर था।
तो उसके लिए बोला था कि सबको बहुत ही सावधान रहना है। और उसके बाद था एक एनाकोडा, किसी ने नाम सुना होगा, एक बहुत ही डेंजरस स्नेक होता है, लगभग 12 मीटर्स इन लेंथ। वो भी वहाँ पे किस तरह से, जो जनरली आदमी को अटैक नहीं करता है, बट जो वो रहते हैं अदर एनिमल्स वगैरह, उसको खाता है। और उसके अलावा एक और फिश का नाम बताया था, इलेक्ट्रिक ईल। ऐसी मछली जो मतलब लगभग 400 वोल्ट का करंट जनरेट करती है। उतना उस देख नहीं पाती है, बट जस्ट करंट से अपने जो शिकार को अनकॉन्शियस कर देती है, फिर वो डूब जाता है, उसको खा लेते हैं। तो इस तरह से बहुत डेंजरस था। फिर जो नदी के अक्रॉस पेड़ थे, कभी भी पेड़ गिर जाते थे, क्योंकि उनकी जड़ें ज्यादा डिप नहीं रहती थी, सैंड रहती है, और पानी के बहाव से कभी भी वो गिर के, तो इस तरह वहाँ पे जो डेथ रेट थी बहुत ही ज्यादा थी, बिकॉज ये सारे रीजन इतना डेंजरस है। ये तो पानी के अंदर था। फिर डेंजरस ऑन द लैंड, फिर महाराज वहाँ पे बता रहे थे किस तरह से फिराइबे का मैंने बता ही दिया। उसके बाद उन्होंने बताया किस तरह से कि फिराइबे का नहीं बताया ना। हाँ, ये एक बहुत मछली है जो मतलब लगभग 350 पाउंड्स ह्यूज उसका वेट है, मतलब मे बी लगभग 150-200 किलो। और स्पेशली जब वो एक्चुअली जा रहे थे, तो सबसे पहले उन्होंने नोटिस किया कि एक जगह गांव आया था, और वहाँ पे, मैं स्टोरी कट शॉर्ट करके बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी है। आप सोच लीजिए, 6-8 वीक की स्टोरीज है, 6 वीक्स उसमें मेंशन कर रहा था, 2 मंथ्स का लगभग टूर था। तो जस्ट हाफ एन आवर 40 मिनट्स में इसको कंक्लूड करना है। तो अभी हमने देखा था किस तरह से पानी के अंदर डेंजर है हर जगह। अभी लैंड का उन्होंने बताया कि जैसे वहां से जंगल से कोई निकलता है, तो वहां पे हर जगह इतने सांप रहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति निकला तो सांप वहां अलर्ट हो जाता है। फिर दूसरा, मतलब पहला निकलता तो सांप को पता चल जाता, दूसरे में अलर्ट हो जाता, तीसरे को तो वो डस ही देगा। ऐसा होता ही होता था मैक्सिमम केसेस में। तो महाराज ग्रुप लीडर थे, तो उनको हमेशा थर्ड पे रहना रहता था। तो पहला निकलता था, दूसरा निकलता, तीसरे में थोड़ा गैप करके फिर निकलते थे, लेकिन फिर भी महाराज ने देखा 2-3 बार एकदम स्नेक उनको काटने के लिए रेडी था, बट समहाउ भगवान की कृपा से वो बच गए। तो इस तरह से वो अलग अलग डेंजर्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। और उसके बाद फिर उनका पहला गांव आता है जहाँ वो जाना शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि एक जगह जस्ट स्मोक आ रही है जंगल से। तो फिर जो कैप्टन था उसने बताया कि ये इंडियन विलेज है, तो सब एक्साइटेड हो जाते हैं। और बड़ी बोट क्या है कि मेन नदी में रहेगी, वो छोटी छोटी जो अलग अलग ब्रांच है वहां पे नहीं जा सकती। तो जो गवर्नर की वाइफ थी, उन्होंने एक छोटी बोट भी प्रोवाइड की थी डिवोटीज के लिए, ताकि बड़ी बोट से छोटी बोट में बैठ के आप किनारे पे चले जाओ, जो भी प्रसाद कैरी करना सब कुछ कर लो। तो डिवोटीज उस बोट को यूज करके जाते हैं, और वो देखते हैं सामने कि वहाँ पे फॉरेस्ट पे गांव वाले खड़े हैं, कुछ लोग, मतलब 10-15 लोग खड़े थे। और वो फर्स्ट टाइम उन्होंने कभी गोरे व्यक्ति को देखा नहीं, और उसमें भी एकदम हेड से वो तिलक लगा है। महाराज तो अपना सन्यासी डंडा भी हाथ में लेके गए थे कि कुछ हो गया तो एटलीस्ट प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो रहेगा। तो लेकिन जैसे ही सामने वाला एकदम कोई साइलेंट रूप से उस तरह, कुछ तो डाउटफुल, भाई कुछ भी अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डिवोटिस गए, लेकिन वो सोच रहे थे अब क्या करेंगे, एकदम इतना फियरफुल सिचुएशन बन गई, क्योंकि डिवोटिस को भी डर लग रहा था, कुछ भी हो सकता है, नई जगह जा रहे थे। और एट द सेम टाइम जो विलेज वाले थे उनको भी डर रहता कि जो दूसरे लोग आके वहाँ पे अटैक्स वगैरह करते हैं। तो एकदम बहुत ही उस तरह का माहौल बन गया था। तो महाराज सोचे सोचे फिर उनको याद आया, अरे भूल ही गया मैं तो, ऐसे डेंजर में क्या करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो सब लोग क्या करते हैं, कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महाराज लिखते हैं कि मैंने पहली बार देखा डिवोटीज को इतना सिंसियरली चैंटिंग कर रहे हैं, भगवान के नाम को इतना सिंसियरली कर रहे हैं। तो जैसे ही कीर्तन की वाइब्रेशंस वहां तक पहुंचे, तो एकदम माहौल ठंडा हो गया, और विलेज वाले भी जो खड़े थे वहां पे सामने, वो भी अपने एक्सप्रेशंस देने लगे कीर्तन को, मतलब वो हिलने डुलने लगे। धीरे धीरे माहौल ठंडा हुआ, और उनसे बातचीत किया, गांव में गए, बुक्स दिया, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन किया।
और इस तरह मतलब ये कॉमन हर गांव के ये स्टोरीज थी। शुरू में थोड़ा चैलेंज, फिर वहाँ गए, ड्यूटी से मिले। एक जगह गए महाराज तो सोचे कि इनको मैं कैसे बताऊंगा, गांव के लोग हैं, कुछ पता नहीं, कैसे भगवान के बारे में क्या बताऊं, कैसे उनको एक्सप्लेन करूं। तो सोच रहे थे, फिर सोचा कि चलो अगासुर की कहानी बताता हूँ, ये जंगल के लोग हैं, इनको थोड़ा पता रहेगा। तो बोले कि एक अगासुर नामक का मतलब अगासुर करके एक सांप था। वो इतना लंबा था, मतलब अमेज़न नदी की तरह इतना विशाल लंबा था। तो बोले आप लोग उस सांप को मार सकते हैं? बोले नहीं, लेकिन उसको भगवान श्री कृष्ण ने उसको मारा था। अच्छा, सब सरप्राइज हो गए, अच्छा भगवान ने उसको मारा था। तो समहाउ अदर वो उनसे रिलेट कर रहे थे कि कैसे वो भगवान के बारे में जाने, अप्रिशिएट करें। इस तरह से उन्होंने वहाँ पे इंटरेक्शन किया। और महाराज एक जगह लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर हैड सेड, क्या कहा भक्ति विनोद ठाकुर ने, इफ समवन टेक्स संकीर्तन टू अ प्लेस वेयर इट हैज नेवर येट बीन, ही पर्सनली accompanies them। अगर कोई व्यक्ति ऐसी जगह संकीर्तन लेके जाता है जहाँ तक अभी तक कभी नहीं गया, तो भक्ति विनोद ठाकुर पर्सनली उसको कंपनी देते हैं। और इस तरह से कोई इस तरह से करता तो श्योरली इज गोइंग बैक टू गॉडेड। और वहाँ पे जितने भी आचार्य जैसे सबकी ब्लेसिंग्स रहती है। एक्चुअली जस्ट मुझे पॉइंट आ रहा है, भक्ति प्रेम से हमारे हर बार बताते हैं कि अभी हमारे पास ये अवसर है, अदरवाइज एक बार सब भक्त बन जाएंगे तो हम किसको प्रचार करेंगे, किसको बताएंगे? अभी तो डिवोटीज नहीं है, इसलिए तो अवसर है। और एनी वजह से भगवान ने अर्जुन को बोला था कि आप युद्ध करो नहीं करो, सब तो एक तरह से मरने वाले ही है। अब युद्ध करोगे तो क्रेडिट आपको मिलेगा। तो उसी तरह प्रचार आप करोगे नहीं करोगे, चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है कि पृथ्वी के हर नगर हर ग्राम में प्रचार होगा, डिवोटीज बनने वाले हैं। बट अगर हम करेंगे तो हमें क्रेडिट मिलेगा, हमारा शुद्धिकरण होगा, एंड वैष्णव हमसे खुश होंगे तो हम भी भगवान के धाम जा सकते हैं। अदरवाइज ये होने ही होने वाला है। प्रभुपाद के एक शिष्य थे, उनका नाम था भावानंद प्रभु करके। तो उनसे पूछा कि भावानंद, मटीरियल वर्ल्ड में कौन सा प्लेजर होता है? भावानंद प्रभुपाद ने नाम दिया, इस भाव मटीरियल वर्ल्ड में कुछ प्लेजर है। तो फिर बाद में एक्सप्लेन किया किस तरह से प्रचार है वो एक आप मटीरियल वर्ल्ड में ही उसका आनंद ले सकते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में किसको प्रचार करेंगे? सब कोई तो भक्त है वहाँ पे, तो वहाँ प्रचार का स्कोप नहीं है। तो जो भी प्रचार करना है आप यहीं पे कर सकते हैं। तो हाँ, तो फिर इस तरह से मतलब आप बुक पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो उसमें फिर एक कुछ कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट्स में बताता हूँ जो तो आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो। और बहुत छोटी बुक है, 25-30 पे 23 पेज की पीडीएफ है, उसको पढ़ सकते हैं, इंजॉय करेंगे। और आप सोचेंगे भाई इतना रिस्क कोई ले सकता है भगवान के लिए क्या, मतलब इम्पॉसिबल। और ये रियल इंसिडेंट्स, ऐसा नहीं कि कुछ माइथोलॉजी है कभी हुई थी, ऐसा नहीं, रियल इंसिडेंट्स। तो एक बार क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था सैंड बार का, तो एक जगह बोट जाके फंस जाती है। फिर कैप्टन बोलता है कि किसी को उतरना होगा और धक्का देना होगा, नहीं तो बोट नहीं निकलेगी। तो महाराज बोलते हैं कि आप चाहिए? बोले नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो महाराज लीडर थे ग्रुप के, तो महाराज को ही जाना था। और वो इतना दलदल की तरह रहता है, आपने देखा होगा कभी अगर दलदल में गए तो एक पैर रखते हैं दूसरा पाँव रखेंगे और उसको निकालेंगे तो और अंदर चला जाता है, ऐसा होता है। तो महाराज ने क्या किया, अपना जैसे राइट हैंड सॉरी राइट पैर रखा अंदर, तो पैर पूरा अंदर चला गया। तो एकदम वो सरप्राइज हो गए, भाई क्या होगा। उसको निकालने के लिए हाथ लगाया, तो राइट हैंड और राइट लेग दोनों अंदर, एक पार एक एक पैर और एक हाथ नाव में, और दूसरा कीचड़ में उधर फंस गया, एकदम तितली की तरह ऐसे लटक गए। और एकदम पूरा इतना मतलब वैसा दलदल की जितना आप प्रयास करोगे उतना फंस जाए, जैसे मकड़ी के जाल में कीड़ा फंसता है, जितना प्रयास करता है उतना ज्यादा उलझ जाता है। तो महाराज के साथ सेम हुआ। फाइनली उन्होंने जोर से बोला डिवोटीज को, हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल। तो डिवोटीज आए और उन्होंने 6 डिवोटीज ने उनको खींचा, तब जाके उससे वो निकले बाहर। इट टुक 6 men टू पुल मी आउट ऑफ द क्विक सैंड। 6 डिवोटीज ने खींचा तक उससे निकले, और फिर फाइनली जाके महाराज को बोला, महाराज आप ठीक है, सब कुछ ठीक है। और जब उनको खींच रहे थे तो उसके धक्के के कारण वो बोट वहां से निकल गई, क्योंकि वो फोर्स लगता है ना रिवर्स में, उसको खींचा महाराज को पकड़ के। तो समहाउ फिर बाद में
जो कैप्टन था उसने बताया भी था कि यहाँ पे कुछ बहुत ही खतरनाक एलिगेटर क्रोकोडाइल्स वगैरह रहते हैं और वो जस्ट स्मेल से ही डिटेक्ट कर लेते हैं और दलदल के पास ही रहते हैं। जैसे कोई एनिमल वगैरह फंस जाता है तो उसको खा लेते हैं। तो उस समय एक्चुअली बोट के साइड में चल ही रहे थे, लेकिन समहाउ टाइमली ड्यूटीज ने महाराज को निकाल दिया। तो अदरवाइज लाइक दैट वाज आल्सो अनदर रिस्क ऑफ लाइफ। तो ये एक इंसिडेंट था। फिर एक बार महाराज को डायसेंट्री मतलब पेट का जैसे बार बार लूज मोशन की तरह, तो क्योंकि वहाँ पे एक चीज वो भूल गए थे, सब कुछ अरेंजमेंट किया खाने का, लेकिन पीने का पानी साथ में नहीं लेके गए। पानी वही जो नदी का पानी था उसी को कुकिंग के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए यूज कर रहे थे। तो इस कारण से पानी प्रॉपर नहीं था तो उनको एकदम खतरनाक प्रॉब्लम हो जाती है। और फाइनली वहाँ की जो लोकल विलेजर्स जो डॉक्टर्स रहते हैं उसके थ्रू उन्होंने ट्रीटमेंट लिया और इतना मतलब ऐसी बीमारी थी। और महाराज ने बाद में आके जब जैसे सिटी में आ गए थे तो वहाँ आके लोगों को बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई थी और मैं कुछ ऐसा कुछ मेडिसिन लिया और कुछ ही समय में वो ठीक हो गया। तो उन्होंने डॉक्टर्स ने बिलीव ही नहीं किया कि आप झूठी कहानियां बता रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतनी खतरनाक बीमारी ऐसे ठीक हो ही नहीं सकती। तो गाँव में इतना वो है कि हर एक चीज़ के लिए वो रहता है कि जो जड़ी-बूटियाँ, औषधियाँ रहती हैं कि हर एक का समस्या के इलाज रहता है। इस तरह से बहुत सारा एडवेंचर हुआ। कुछ-कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई और इसके अलावा और भी बहुत सारे। एक वो था जो आपने सुना है ना व्हेल फिश का, उसमें भी 2 कैटेगरी रहती है, एक रेड एंड ब्लैक। तो रेड वाली क्या करती है, वो अटैक करती है और ब्लैक वाली उसको किसी पे अगर रेड अटैक करती है उसको बचाती है। तो भगवान ने कैसा अरेंजमेंट कर रखा है। मतलब एक बार उन्होंने देखा भी था किसी एक माताजी का मतलब कुछ अंदर गिर गया किसी का, तो रेड वाली तुरंत अटैक के लिए आती है, लेकिन जो ब्लैक वो फिश रहती है, व्हेल रहती है, उसको भगा के और उसको जो जो भी है मतलब अगर कोई पर्सन गिर गया तो उसको किनारे तक लेके जाती है। तो नेचर के अकॉर्डिंग हर चीज़ है, हर जगह पे वो रहता था अरेंजमेंट। तो इस तरह से पानी के अंदर खतरा, ज़मीन पे खतरा। और एक बार तो उन्होंने देखा थी कि नाव के अंदर कुछ इस तरह से छोटे-छोटे कीड़े आ गए और बाद में जो वो कैप्टन की वाइफ थी उसने बताया था कि ऐसे ही मक्खियाँ टाइप की हैं कि अगर वो काट लेगी तो 3 मिनट के अंदर व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। तो महाराज लिखते हैं कि हर जगह वाटर, लैंड, एयर तीनों जगह डेंजर ही डेंजर था। एकदम पूरा रिस्की लाइफ पे चल रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने ट्रैवल किया और उनका जितना भी स्टॉक था प्रसाद फूड का, उसको कुकिंग करके खिचड़ी बना के डिस्ट्रीब्यूट किया और फाइनली जब स्टॉक ओवर हो गया तो फिर वापस यू टर्न लेके वो लोग आए और उन्होंने देखा रास्ते में जहाँ-जहाँ वो गए थे लोग किनारे पे खड़े हैं वहाँ पे। उनके लिए वेट कर रहे हैं कि वो लोग फिर से आएँ और वहाँ पे कुछ टाइम उनके साथ स्पेंड करें। इतना मतलब फर्स्ट टाइम गए और डिवोटीज़ और वो जो गाँव वाले थे इतना अट्रैक्ट हो गए और एक जगह तो वो जस्ट हरि बोल करके और उनके लिए स्वागत के लिए खड़े थे, लेकिन कैप्टन ने रोका नहीं, लेकिन फाइनली वो एग्री हो गया। और जैसे मतलब हम एक जगह दूसरी जगह जाते हैं, पुराने डिवोटी से मिलते हैं, तो उस तरह से वो इतना ईगरली वेट कर रहे थे। तो मतलब हर जगह जो लोग हैं वो कृष्ण भक्ति के लिए लालायित रहते हैं, सबके हृदय में है। बस थोड़ा-सा एफर्ट्स देके अगर हम जाएँगे तो हर कोई रिस्पॉन्ड करता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवेंचरस ट्रिप थी महाराज की। उसमें बहुत ही मतलब क्योंकि उनके पास ये ऑप्शन भी था कि जितना हम इस बार कर लेंगे, डोंट नो नेक्स्ट टाइम हमें ये मौका मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। तो उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया जितना वो कर सकते थे। बीच में एक डिवोटी छोड़ के भी चला गया कि भाई उससे हो नहीं पाएगा। और एट द सेम टाइम महाराज एक जगह मेंशन करते हैं कि हम लोग पूरा स्ट्रिक्ट मॉर्निंग प्रोग्राम फॉलो करते थे। ऐसा नहीं कि हम प्रचार में गए हैं, लेट नाइट हो रहा है तो चलो यार मॉर्निंग प्रोग्राम छोड़ दो। उसमें लिखा था महाराज ने कि हर एक डिवोटीज़ को कंपल्सरी था कि पूरा प्रॉपर मंगल आरती अटेंड करना है, चैंटिंग्स राउंड्स करके उसके बाद वो फिर उसके लिए जाते थे। तो क्योंकि जो हमें स्ट्रेंथ मिलेगी प्रीचिंग के लिए हमारी साधना से ही मिलेगी। अदरवाइज़ ये हो गया कि हम सबको भक्त बनाएँगे लेकिन अपने आप को भक्त नहीं बना पाएँगे। इसलिए डिवोटीज़ बोलते भी हैं तो प्रचार में अपने आप को पहले अच्छा भक्त बनाना ज़रूरी है। और एट द सेम टाइम प्रीचिंग करना भी है। तो इसके लिए जो प्यूरिटी इज़ द फोर्स है, वो स्ट्रॉन्ग साधना से आएगी और एट द सेम टाइम हम प्रयास करेंगे तो प्रभुपाद और पूरी हमारी जो वैष्णव परंपरा है, हेल्प करने के लिए रेडी है। और मैं एक्चुअली इस बार फर्स्ट टाइम
संकीर्तन बस में गया था। इससे पहले भी मैं संकीर्तन बस में गया था, एक बार गया था जस्ट फॉर अ वीक, लेकिन इस बार मैं मोर देन 1 मंथ संकीर्तन बस में था और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि बहुत बार एक वो रहता था कि अरे लोग लेंगे नहीं लेंगे, और मैं एक दिन ट्राई भी किया। एक कुछ रियलाइजेशन हुआ मुझे कि मैं अपने एफर्ट से जितना प्रयास किया चीजें नहीं होती थी। जब पूरा सरेंडर कर दिया प्रभुपाद से और इतना इंटेंस प्रार्थना करनी पड़ती है, क्योंकि आप पूरा एकदम बुक बैग लेके घूम रहे हैं, कंधा टूट रहा है आपका, कोई तो ले लो, अरे कोई तो ले लो। फाइनली प्रभुपाद की, भगवान की ब्लेसिंग से ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मैंने देखा शुरू शुरू में एक दिन में जोश में गया, पूरा बुक बैग लोड करके बहुत समय ट्रेवल किया, नहीं हुआ, लास्ट में एक जगह पे ही 2-3 जगह बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। और शुरू में कुछ दिन मेरा अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, तो एक डिवोटीज पूछ रहे थे कि प्रभु कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। मैं बताया जो प्रभु ऐसा करना चाहिए, ऐसे बात करनी चाहिए। बहुत थोड़ा अंदर से था कि भाई अपना तो इतना अच्छा होता है, ये लोग तो नहीं कर पाते। और अगले दिन क्या हुआ कि मैं, हाँ, 3 घंटे तक पूरा प्रयास किया, एक बुक भी नहीं गई, तो पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया। मैंने कहा भाई 3 घंटे और कंटिन्यूसली ट्राई करे, बट इवन छोटी बुक भी किसी ने नहीं ली। तो फिर मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं जा रहा था, फिर फाइनली एक 2 स्टूडेंट आते हैं स्कूटी से पीछे से, वो रोकते मेरे को, बोलते हैं हमें गीता चाहिए इंग्लिश में। तो मेरे पास फॉर्चुनेटली गीता थी, तो उनको दिया। फिर वहीं पे एक और व्यक्ति आगे बोले मुझे रामायण चाहिए। तो कुछ चीजें मैंने रियलाइज की है कि हाँ, अपने एफर्ट से नहीं होगा, एट द सेम टाइम हम प्रयास करेंगे तो प्रभुपाद और जो पूरे वैष्णव परंपरा है, गुरु महाराज, हर कोई हमें रेडी है हमें हेल्प करने के लिए। तो इसी तरह प्रयास करना चाहिए। और स्पेशली हमें ये गिफ्ट मिला है, अब सोचिए ना, अगर डिवोटीज बाहर जाके प्रचार नहीं करते तो क्या आज हम इस्कॉन में होते हैं, ये सारी फैसिलिटीज हमारे पास होती, जितना कुछ हम कर पा रहे हैं, एक जो अच्छा मनुष्य का जीवन जीने का अवसर मिल रहा है, नहीं कर पा रहे थे ऑफकोर्स। बट हाँ, किसी के कारण हम ये सब कुछ कर रहे हैं, देन व्हाई नॉट हम किसी और को ये सुअवसर दें, ताकि उससे भी उनके जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। तो इस स्पिरिट के साथ हम प्रयास कर सकते हैं कि जितना हम अच्छा कर सकते हैं हमें प्रयास करना चाहिए, और प्रयास करेंगे तो जरूर प्रभुपाद हेल्प करेंगे। बोलते प्योर डिजायर देन श्योर सक्सेस। प्योर डिजायर के साथ एफर्ट्स करेंगे तो श्योरली सक्सेस मिलेगी। तो 8:45 I will share this PDF. You can relish the wonderful pastimes of इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज। इसके अलावा एक और मैं पढ़ रहा था मुकुंद महाराज, जो आपके जगन्नाथ डिटीज के कार्विंग तो श्याम सुंदर प्रभु करते हैं। इनिशियली जो 3 कपल्स रहते हैं जो सैन फ्रांसिस्को में जाते हैं, मुकुंद महाराज एंड जानकी माता जी, हाँ, तो उनकी भी एक पढ़ रहा था, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली हम जितना अलग अलग चीजें पढ़ते हैं, इसलिए बुक रीडिंग भी इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद लीलामृत या अलग अलग जो प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे तो वहां से तो स्ट्रेंथ मिलेगी हमें, नहीं तो बस बर्डन की तरह हो जा रहे प्रभु, जाना पड़ेगा क्या, ये सब करना पड़ेगा क्या, पड़ेगा हो जाएगा। नहीं तो हाँ, खुद से कि हाँ करना है, वो स्पिरिट तभी आएगी जब हम कुछ प्रॉपर अपना साधना करके वो इंस्पिरेशन लेंगे। ओके, तो ट्यूडेज को कुछ कहना है, कुछ क्वेश्चंस, क्लैरिफिकेशन, मोस्ट वेलकम। अदरवाइज मैं पिछले लगभग 40 मिनट से बोलते ही जा रहा हूँ। आई डोंट नो हाउ मच इट वाज रिलेवेंट। रिसेंटली मैंने इसको पढ़ा था तो मैं सोचा शेयर करना चाहिए। 2 बार पढ़ लिया, एक बार तो मैंने पर्सनली पढ़ा था, एक ग्रुप रीडिंग में लिया तब उसमें पढ़ लिया था। छोटे बुक से और कभी भी आप उसको पढ़ सकते हैं। ओके, रामानंद कृष्ण प्रो, एनी कमेंट, करेक्शन? हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जिस तरीके से प्रभु जी कृष्णा। टॉपिक का नाम था एडवेंचरस प्रीचिंग, तो आपने भी बहुत एडवेंचरस तरीके से बताया प्रभु जी। और उससे भी ज्यादा एडवेंचर तरीके से अगर आप बुक पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। मैं तो जस्ट ऊपर ऊपर से चीजें बता रहा था, हो सकता है कुछ आगे पीछे भी हो रही हो। यस। डेफिनेटली प्रभु जी, मतलब इतना तो समझ में आ रहा है प्रभु जी, मतलब कि जिस प्रकार से प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स हैं, मतलब के
कितना सरेंडर है उनका प्रभुपाद के प्रति, मतलब कैसा मतलब शिक्षा दिया होगा प्रभुपाद जी ने उनको, मतलब कि इतना सारा स्ट्रगल होने के बाद भी मतलब इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो मतलब कभी बार हम लोग लगता है मतलब कि कोई व्यक्ति कैसे इतना कर सकता है कि हर स्टेप पे, जैसे कुंती महारानी बोलती हैं पदम पदम यत पे पदम न तेज़, हम तो आज वो प्रूव हो गया प्रभु जी कि कैसे हर स्टेप पे विपदा है। तो हम्म, और भगवान भी गीता में बोलते हैं तो खाला मैं सासुतम, तो प्रैक्टिकली प्रभु जी अभी समझ में आया, मतलब कि वैसे हम लोग मतलब जैसे शास्त्रों में पढ़ते रहते हैं, बट लेकिन जब प्रैक्टिकली जब बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, जब सुनते हैं जैसे आज सुना है प्रभु जी, तो डेफिनेटली मतलब फील होता है। तो मतलब प्रभु जी बस यही मतलब है कि जैसे प्रभुपाद के डिसाइपल इतना कुछ कर रहे हैं और इतना सब, इतना एजेड भी होने के बाद भी कर पा रहे हैं, तो हम मतलब अभी हम इतना यंग हैं, तो हम मतलब हम क्यों नहीं कर पा रहे, हमारे कैसे हम इंस्पिरेशन को जगाएं प्रभु जी, मतलब वो ताकि हम कुछ कर पाए प्रभुपाद की सोसाइटी के लिए। एक्चुअली प्रभुपाद डिसाइपल्स को हम कॉपी तो नहीं कर सकते। एक्चुअली बताते हैं कि जो प्रभुपाद के शिष्य हैं सारे एम्पावर्ड सोल एक तरह से, वो स्पेशली प्रभुपाद को हेल्प करने के लिए आए। प्रभुपाद बताते भी हैं कि मेरे गुरु माया ने आप सबको भेजा है मुझे हेल्प करने के लिए। तो वो एक तरह से साधारण पुरुष नहीं है। तो देख सकते हैं शुरू से ही कैसे वो जस्ट यंग एज में आए और अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया, और पूरा इतना 100% प्रभुपाद से फिर प्रभुपाद ने जो बोला करेक्ट। अभी महाराज भक्ति प्रेम से महाराज बताते बीच में कि प्रभुपाद ने जैसे लेक्चर बताया था किस तरह से जो काउ डंग होता है इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बार प्रभुपाद डिसिपल जा रहे थे विदेश में, तो गाड़ी रोके, अरे गाड़ी रोको गाड़ी रोको, अरे गाय का गोबर इसको उठा लो गाड़ी के अंदर रख लो। इतनी श्रद्धा, हम तो कभी मतलब गाय की भी केयर नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने यहाँ प्रभुपाद ने बोला था कि अरे गाय का गोबर शुद्ध होता है, उसको गाड़ी के अंदर रख लिया। तो एक तरह से हम उनको इमिटेट नहीं कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम उनके जीवन से और प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे तो कुछ पोर्शन तक हम उस इंस्पिरेशन को, स्पिरिट को कैरी कर सकते हैं। इसलिए कुछ डिवोटी जैसे प्रभुपाद लीलामृत रेगुलरली पढ़ते हैं, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं प्रभुपाद के बारे में, अलग अलग डिवोटीज के बारे में, स्पिरिट नहीं आती। लगता है बस ठीक है अपनी भक्ति हो जाए अच्छे से, अपनी माला हो जाए, साधना हो जाए, बस हो गया आज का साधना कोटा पूरा। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन प्रभुपाद डिसाइपल्स आज भी देख हम देखते हैं ना, जैसे गौरांग प्रभु है, राधेश्याम प्रभु हैं, बहुत सारे ड्यूटी जो स्पिरिट के साथ कर रहे हैं। इतने यंग एज में वो लोग कुछ जीबीसी में हैं या यूथ प्रीचिंग को लीड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद डिसाइपल्स ही कर रहे थे, वो अब कर रहे थे, लेकिन आज के जनरेशन में भी डिवोटीज हैं। तो हम उनको इमिटेट नहीं कर सकते, लेकिन जो हमें हमारे अंदर क्वालिफिकेशंस हैं, क्वालिटीज हैं, उसको भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए। जैसे बताते हैं कि अलग अलग तरह के पक्षी रहते हैं, कुछ एक पेड़ से दूसरे पेड़, कुछ एक सिटी से दूसरी सिटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स तक उड़ सकते हैं। तो जितना हम कर सकते हैं और उसको और जितना एक्सटेंड कर सकते हैं प्रभुपाद और भगवान की कृपा से हमें प्रयास करना चाहिए। और जब भी मौका मिलता है उनसे सुनने का, उनकी सेवा करने का जितना हम कर सकते हैं। जैसे भुवनेश्वर में तो परम पूज्य हरदेव स्वामी महाराज अपना संग देते हैं डिवोटीज को, बहुत ही मतलब उनका जो स्पिरिट है और गुरु के प्रति जो श्रद्धा है, शरणागति है, तो उस तरह से जो फुल्ली सरेंडर्ड सोल है, उनकी सेवा, उनका संग करके, और यूथ प्रीचिंग में बहुत सारे डिवोटीज जो इतने एक्टिव हैं, उनका संग करेंगे तो हमारे अंदर भी उत्साह आएगा। और ऐसे भक्तों के साथ में रहेंगे जो अच्छे से प्रचार नहीं कर रहे, तो हमें भी उतना इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा। तो संगति का असर तो होता ही है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। Yes, प्रभु जी। और किसी को प्रश्न है, कोई जिज्ञासा, तो प्रभु जी से पूछ सकते हैं। यस प्रमोद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी मेरा दो प्रश्न है। एक प्रश्न खुद का जो मॉर्निंग साधना है उसके लेकर, और एक है प्रभु जी की इंस्पिरेशन आपसे चाहिए थी प्रभु जी। एक ये आप ये मतलब प्रभु जी आप बताने की कृपा कीजिए प्रभु जी की आप किस चीज से इंस्पायर, मतलब जैसे कह सकते हैं कि आपके लाइफ में वो कौन एक जैसे कि चीज है प्रभु जी जो कि हमेशा आपको इंस्पायर करती है और हमें ऐसा मतलब आपको जो कहते हैं ना स्पिरिट में रखते हैं। और दूसरी बात की घर पे प्रभु जी हम सिंगल मतलब जैसे कि अकेला रहते हैं, तो खुद के साधना में कुछ
कभी कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो उसे कैसे जैसे कि नेक्स्ट लेवल पे ले जाए प्रभु जी ये? ओके, तो पहला सवाल थोड़ा चैलेंजिंग है मेरे लिए। लेकिन उसमें मैं देखा जब भी मैं अपनी जो सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम का पार्ट रहता है उसको अगर मैं सिंसियरली कर लेता हूँ, जैसे टाइम पे मेरी अर्ली मॉर्निंग 6-7 बजे तक 16 राउंड्स हो गए और बुक रीडिंग भी हो गई, तो उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन थ्रू आउट द डे एक्टिव रहता है। अदरवाइज वो क्या, खुद का ही अच्छे से नहीं होता, दिन भर माला करना ये करना उसी में लगे रहते हैं। तो जब मतलब सिस्टमेटिकली मैं मतलब सुबह उठ के और मॉर्निंग टाइम्स को अच्छे से यूटिलाइज करके स्ट्रॉन्ग साधना हो जाती है, देन थ्रू आउट द डे भगवान के अलग अलग सेवा में बिजी होके उस सबको कर सकते हैं। तो एक मेरे लिए जनरली मैं देखा, जब अच्छी चैंटिंग और बुक रीडिंग प्रॉपरली टाइम पे हो जाती है, देन गिव्स मी इंस्पिरेशन। स्पेशली बुक रीडिंग करता हूँ तो मैं कभी कभी बोल बोल के भी करता हूँ, और ज्यादा मजा आता है। और भागवतम भगवत गीता आप जितना समय निकाल सकते हैं उसको जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा एंजॉय करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार जितना पढ़ सकते हैं। जैसे रामानंद कृष्ण को देखा होगा आप लोगों ने, बहुत ही सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं हर चीज से, तो वो एक रहता है। और दूसरी चीज आपने बोला कि आप घर पे हैं, तो ऑफ कोर्स घर पे अकेले में बहुत चैलेंजिंग रहता है। अगर आपका घर ज्यादा दूर नहीं है तो प्रयास कर सकते हैं बीच बीच में मंदिर या बेस अगर पॉसिबल होगा। आई डोंट नो क्या सिचुएशन है एग्जैक्टली, लेकिन इस तरह से ऑनलाइन भी अगर डिवोटीज के टच में रहेंगे तो उससे भी इंस्पिरेशन बना रहता है। अकेले में बहुत मुश्किल होता है। उसके अलावा फिर अगर उठने में कुछ दिक्कत है तो डिवोटीज की हेल्प ले सकते हैं, वो रेडी है अगर हम हेल्प चाहते हैं तो। बस हम लोग ही ठीक है, कोई तो देखने वाला नहीं है, जब मन होगा तब उठ जाएंगे, माला कर लेंगे। हमें खुद से आगे आके अपनी अकाउंटेबिलिटी बनानी होगी कि जैसे आप आपके जो काउंसलर है उनको डेली बेसिस पे रिपोर्टिंग करें कि प्रभु आज मैं इतने बजे उठा, इतने बजे चैंटिंग हो गई, ये स्टडी किया, सर्विसेज किया। खुद से हम अकाउंटेबली रहेंगे अपने काउंसलर के प्रति या केयर टेकर के प्रति। तो क्योंकि अगर आप भक्ति में खुद की सिंसियरिटी पर डिपेंड करता है, आप खुद से सिंसियर नहीं होंगे तो एक लेवल तक डिवोटीज आपको पुश करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली तो खुद से सिंसियर होना पड़ेगा। जैसे मैं कोविड के समय में कुछ समय घर पे था, तो खुद से चलो भाई कुछ तो है नहीं, तो ऑनलाइन ही लाइव 4:30 मंगल आरती। हाँ, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है आपको कि भाई 4:30 क्यों उठना है, आराम से 6 बजे उठो। लेकिन घर पे कि हाँ 16 वाला करनी है तो सुबह ही उठना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं था। तो मैं प्रयास करता था सुबह फिर जल्दी उठ के मंगल आरती अटेंड किया ऑनलाइन, एंड देन 16 माला जब तक सब सोए रहे तब तक हो जाए टाइम पे। एक बार दिन शुरू हुआ तो फिर बहुत सारे डिस्टर्बेंस घर पे तो होता है, बेस वगैरह में तो आप ठीक है बाद में माला अच्छे से कर सकते हैं। तो जितना प्रयास हो सकता है, और मैं फोन पे और ऑनलाइन जितना भी डिवोटी से एसोसिएशन मिल सकता है तो वैसे आप भी प्रयास कर सकते हैं। और स्पेशली बीच बीच में कोशिश कर सकते हैं, फेस्टिवल्स वगैरह जब भी होगा तो टेंपल विजिट कर सकते हैं, तो उससे एक अच्छा इंस्पिरेशन मिलता रहेगा। ओके, जी तो प्रभु जी। और प्रभु जी आज की क्लास में हमें सबसे ग्रेट लर्निंग ये मिला प्रभु जी कि जब भी मतलब कैसा भी सिचुएशन हो, हम प्रीचिंग कर रहे हो या अपने लाइफ जी रहे हो या साधना कर रहे हो, वहां पे जिस जिस टाइम भगवान का नाम मतलब कीर्तन नहीं किए तो फिर वहां पे वो फेस कर सकते हैं, माया पे अटैक कर सकती है। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, आई थिंक नारायण विष्णु। जी प्रभु जी, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से मतलब प्रभु जी के लेक्चर को ध्यान सुना और बहुत इंस्पिरेशन भी मिला होगा। तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि प्रभु जी का वो दोबारा से हमें नेक्स्ट टाइम मिले और सुनने का मौका मिले। बहुत इंस्पिरेशन रहा आज का सेशन। तो हम सभी प्रभु जी को धन्यवाद देंगे जोर से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विश्व नरेंद्र प्रभु की जय, जगत गुरु श्री प्रभु की। जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।